Ignited Minds Tutorials, a renowned online educational platform, has recently released a comprehensive series of videos on the topic of probability for students of Class 10 studying under the CBSE and Maharashtra State Board curriculum. This initiative aims to simplify and enhance students' understanding of this crucial mathematical concept. The Probability video series provides a detailed explanation of concepts such as experiments, outcomes, events, sample spaces, and probability calculations. Through clear examples and step-by-step explanations, students can grasp complex concepts easily and develop a strong foundation in probability. These videos also cover important topics like theoretical probability, experimental probability, independent and dependent events, and the concept of permutations and combinations. By utilizing intuitive visual aids and real-life examples, the probability videos ensure students can apply these concepts in practical scenarios. Additionally, the series includes numerous practice exercises and solved examples that can help students assess their understanding and improve their problem-solving skills. Through this comprehensive learning experience, students can gain confidence in tackling probability-related questions. Ignited Minds Tutorials probability videos are designed to cater to the diverse learning styles of students. With its user-friendly interface and engaging content, this series is a valuable resource for students preparing for their Class 10 board exams. So, whether you are a CBSE or Maharashtra State Board student, Ignited Minds Tutorials probability videos are an effective tool to strengthen your understanding of this essential mathematical concept and score well in your exams. Okay, all possible outcomes are present in an event. Okay, such an event is known as a sure or certain event. सारे possible outcomes present है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? Sure or certain event. ठीक है? Clear है? So probability of or sure of an event, that will be 1. ठीक है? Okay. Rolling of a die. All possible outcomes क्या है आपके? 1, 2, 3, 4, 5, 6. F is the event of getting a multiple of 4. क्या हो जाएगा बोलो? A multiple of 4, 2 कैसे होगा? Multiple of 4, 4 1s are 4, 4 2s are 8, 8 तो है नहीं, लेकिन 4 है, तो आपका कितना हो जाएगा बोलो? 1/6. टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स क्या हो जाएगा? ये 1/6, 1/6. F is the event, तो आपका मल्टीपल ऑफ 4 मींस 4, 8, 12 वगैरह. 8 तो है नहीं, बस 4 ही है यहाँ पे. ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम्स टू F is 4. Only one outcome is present in an event. Such an event is called elementary event. ठीक है, PF will be equal to 1/6. So rolling of a die, all possible outcomes भाई सब क्या है आपके? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है, G is the event of getting numbers greater than 8. चलिए इसको कीजिए जरा फटाफट फटाफट फटाफट, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है. All possible outcomes 1, 2, 3, 4, 5, 6. G is the event of getting number greater than 8. G is the event of getting a number greater than 8. क्या कोई नंबर है यहाँ पे greater than 8? तिवारी क्या होगा बोलो? तो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो आपका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा? 0. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपका 6 होगा, तो दिस विल बी 0. ठीक है, सो दिस इज एन इम्पॉसिबल इवेंट. जो आपका श्योर या सर्टेन इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आती है? 1.
और जो इम्पॉसिबल इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आती है 0। बाकी सारे इवेंट्स 0 और 1 के बीच में होंगे। समझ में आ रहा है ये? तो आपका इम्पॉसिबल इवेंट जो है, इम्पॉसिबल इवेंट, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0, और आपका जो श्योर इवेंट है, ठीक है, उसका भाई साहब कितना है प्रोबेबिलिटी 1। इम्पॉसिबल इवेंट का भाई साहब श्योर 0, और श्योर इवेंट, सर्टेन इवेंट जिसको अपने देखा अभी, ठीक है, सर्टेन इवेंट ये आपका होगा 1, बाकी सारे इसके बीच में ही होंगे। ठीक है, सो ऑलवेज जब भी आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे होंगे, जितनी भी आपकी वैल्यूज निकलेगी वो 0 और 1 के बीच में ही होगी। कोई भी प्रोबेबिलिटी आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती और कोई भी प्रोबेबिलिटी आपकी ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती। ठीक है, कोई भी प्रोबेबिलिटी अगर आपकी ग्रेटर देन 1 आ रही है तो आपने गलत कैलकुलेशन किया है, और कोई भी प्रोबेबिलिटी अगर आपकी नेगेटिव आ रही है तो भी आपने गलत कैलकुलेशन किया है। ठीक है, क्लियर है? सो ऑल प्रोबेबल वैल्यूज विल ऑलवेज बी बिटवीन 0 and 1। ठीक है, ओके। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जी, नो आउटकम इज फेवरेबल टू एन इवेंट, सच एन इवेंट इज कॉल्ड एन इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, नो आउटकम इज फेवरेबल टू एन इवेंट, सच एन इवेंट इज कॉल्ड एन इम्पॉसिबल इवेंट। तो आपका भाई साहब यहाँ पे 0/6 प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज 0। ऑल पॉसिबल आउटकम्स, रोलिंग ऑफ अ डाई, 1 2 3 4 5 6, रोलिंग ऑफ अ डाई हो गया भाई साहब ये। x इज द इवेंट ऑफ गेटिंग ऑड नंबर। चलिए भाई साहब इसको निकालना फटाफट। गेटिंग एन ऑड नंबर, x इज द इवेंट ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। ऑड नंबर्स कितने हैं? 1 3 5। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 3, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए 6। बस हो गया भाई साहब आपका 1/2। ठीक है, x इज द गिवन, x इज एन इवेंट ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? 1 3 5। एक चीज और आपको बता दूं, जब भी आप सेट में रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे आपने सेट में रिप्रेजेंट किया है एलिमेंट्स को, इसका एक कार्डिनल नंबर होता है। कार्डिनल नंबर मतलब कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो इसको अपन लिखते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ x। ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा बोलो? 3। ठीक है, और टोटल नंबर सैंपल स्पेस जो होता है वो s लिखते हैं अपन इसको। ठीक है, ये कितना हो जाएगा बोलो? 1 2 3 4 5 6। तो कार्डिनल नंबर ऑफ s कितना हो जाएगा? कार्डिनल नंबर मतलब इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, ये हो जाएगा आपका 6। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ये कितना हो जाएगा? 3/6, दैट इज 1/2। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी प्रोबेबिलिटी। क्लियर है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x हो जाएगी क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ x हो जाएगी कार्डिनल नंबर ऑफ x अपॉन कार्डिनल नंबर ऑफ s। कार्डिनल नंबर ऑफ x इज 3 और 6, दैट इज 1/2। ठीक है, क्लियरम? आर वी क्लियरम ऑन दिस वन? ठीक है, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स 1 3 5 2 4 6, तो पी एक्स की वैल्यू हो गई 1/2। पी वाई की वैल्यू, अच्छा यहाँ पे देखो भाई साहब, आउटकम ऑफ एक्स, तो आपके वाई इज द इवेंट ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। अगर नंबर ऑड नहीं हुआ तो ऑब्वियसली इवन होगा। ठीक है, तो इसका कितने हो जाएंगे भाई साहब आपका? देखो 2 4 6, तो ये कितना हो गया? 3/6, दैट इज 1/2। तो जब भी देखो कि आप ऐसे इवेंट्स होते हैं जो एक दूसरे को क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, मतलब आपका एक्स आर एज टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। एक इवेंट है आपके ऑड नंबर्स का, एक इवेंट है आपके इवन नंबर्स का। भाई साहब ऑड और इवन से ही तो सैंपल स्पेस बना है आपका, है ना? या तो नंबर आपका ऑड होगा या तो इवन होगा। ठीक है, सो अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे, जब भी आपने यहाँ पे देखो पी एक्स की वैल्यू निकाली, ये कितनी आ गई? 1/2, और आपने पी वाई की वैल्यू निकाली, ये कितनी आ गई? 1/2। तो पी एक्स प्लस पी वाई, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो? 1। ठीक है, ये हो गया आपका 1। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आता? ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स जब होंगे हमेशा उनका वैल्यू 1 ही आएगा। जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि आपने एक कॉइन को उछाला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, तो पी एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल? 1/2। क्या ये हेड या टेल का आना कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं? या तो हेड आएगा या तो टेल। तो अगर इन दोनों को अपन ऐड करेंगे, व्हाट वी विल गेट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, दैट इज 1। तो दो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स के प्रोबेबिलिटीज को अगर आप ऐड करेंगे, यू विल ऑलवेज गेट इट एज 1। ठीक है, whenever you are adding the probabilities of two complementary events, the result is going to be 1। क्लियर है? Are we clear? ठीक है, so यहाँ पे px plus py, what you see is half plus half, that is 1। Sum of the probabilities of complementary events is always equal to 1। ठीक है, probability of an impossible event भाई साहब आपका क्या हो जाएगा? कोई भी impossible event की probability कितनी होगी? 0। लिख लीजिए भाई साहब इसको। probability of a certain or sure event, it is always equal to 1। ठीक है,
प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो मैंने आपको क्या बोला कि भाई साहब या तो इवेंट, तो जो भी इवेंट्स होंगे दे विल ऑलवेज लाई बिटवीन 0 एंड 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट कैन नॉट बी नेगेटिव और इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। कोई भी इवेंट, कोई भी प्रोबेबिलिटी का सवाल करते हुए अगर आपका आंसर 1 से ज्यादा आ रहा है तो आप गलत हैं, अगर 0 से लेस आ रहा है तो भी आप गलत हैं। मतलब 1 से ज्यादा आया तो द sum that you have done is wrong, and if it is coming as a negative answer that is less than 0 then also you are wrong। ठीक है, क्लियर है? ओके, लिख लीजिए इसको भाई साहब फटाफट फटाफट, क्विक क्विक। डन डन डन। ओके, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट E, ये कितना हो जाएगा? देखो ऐसे सोचो, प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमने कोई कॉइन को उछाला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना होगा? हाँ 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितना होगा? 1/2। अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल ना बोलकर बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड तो वो कितना होगा? 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हैपनिंग एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट हैपनिंग आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स एंड दे विल ऑलवेज एड अप टू 1। जैसे मैं अगर बोलूं कि आपने किसी डाइस को रोल किया है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, तुम कहां खोई रहती हो भाई साहब? क्या यहां पे तुम रहती ही नहीं हो, मैं बता रहा हूं ना, 80% ऑफ द टाइम यू आर नॉट हियर। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, अगर मैंने किसी डाइस को रोल किया है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कितना हो जाएगा? 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 1 कितना होगा? 5/6 होगा। 5 नंबर्स हैं जो आ सकते हैं, तो 1/6 प्लस 5/6 करोगे कितना आएगा? 6/6, दैट इज 1। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट E, दिस विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1, ये हमेशा 1 के बराबर होगा। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज कितना होगा? 2। बोल रहा हूं ना, 0 जो आंसर है वही आपका टेंशन लेवल भी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज 0। ठीक है, सच एन इवेंट इज कॉल्ड व्हाट टाइप ऑफ एन इवेंट? इम्पॉसिबल इवेंट। अब भी मैंने एक स्लाइड पहले ही लिखाया है इसको और समझाया भी। इम्पॉसिबल इवेंट, यहां पे जो डाउनलोडिंग चल रही है ना उसको थोड़ा सा पॉज कीजिए और इधर का कुछ डाउनलोड उधर कीजिए, वरना 1 साल ऐसे ही निकल जाएगा। ठीक है, ओके, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज, भाई संकेत क्या होगा? सर्टेन टू हैपन, श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट? हाँ, अरे नहीं, प्रोबेबिलिटी पूछी है नंबर्स में, 1, इट इज 1। ठीक है, 1, सच एन इवेंट इज कॉल्ड अ श्योर और सर्टेन इवेंट। श्योर और सर्टेन इवेंट ये होना ही होना है, इसमें कोई चॉइस नहीं है। ठीक है, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, सारे एलिमेंट्री इवेंट्स। अभी देखो, जैसे मैं बोलूं कि आपने एक डाइस को रोल किया है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अगर मैं बोलूं 1 की पॉसिबिलिटी कितनी है? 1/6, 2 की पॉसिबिलिटी 1/6, 3 की पॉसिबिलिटी 1/6, तो सब की पॉसिबिलिटी भाई साहब क्या हो जाएगी? 1/6। इन सबको अगर हम ऐड कर दें, ये सारे एलिमेंट्री इवेंट्स हो गए ना, ये सारे एलिमेंट्री इवेंट्स हो गए, तो क्या आ जाएगा? 1, दैट इज 6/6। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्या हो जाएगा नया? ग्रेटर देन इक्वल टू, मिनिमम क्या हो सकता है वैल्यू? 0, 0 से लेस नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, एंड इधर इक्वल टू 1। ये इम्पॉसिबल इवेंट और ये आपका श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट। बाकी सारे पॉसिबिलिटीज या प्रोबेबिलिटीज इनके बीच में होंगे। ठीक है, क्लियर है? ओके, which of the following experiments have equally likely outcomes? Explain. A driver attempts to start a car, the car starts or does not start.
अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, इक्वल क्या होगा? क्या ये इक्वल आउटकम होगा? हाँ नहीं, क्यों? या तो कार स्टार्ट होगी या तो नहीं होगी, है ना भाई साहब? चाबी घुमाएगा अगर वो, तो कार या तो स्टार्ट हो जाएगी या तो नहीं होगी, ठीक है? सो क्या ये इक्वल होगा? इट्स लाइक अ टॉसिंग अ कॉइन, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, इक्वल आउटकम है, ठीक है? क्या ये इक्वल आउटकम होगा भाई साहब? अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, ही और शी शूट्स और मिसेस द शॉट। भाई साहब बास्केटबॉल में भाई साहब उसने थ्रो किया, तो या तो भाई साहब उसके गया या तो नहीं गया, तो क्या ये इक्वल आउटकम होगा? इक्वली लाइकली आउटकम, ओके। A trial is made to answer a true false question. The answer is right or wrong. क्या ये भी आपका इक्वल आउटकम का होगा? ओके। A baby is born. It's a boy or a girl. Equal outcome. Okay. So this statement is not complete. The car starts or does not start. ये क्यों है भाई साहब? Okay. क्यों? Because we do not know anything about the car or the driver. बेकार है। Which of the following cannot be the probability of an event? बताओ इसमें से कौन सा probability of an event नहीं हो सकता है? पांडे तू वहां पे बैठता है ना, तेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता, तेरे फेस से मैं बता सकता हूं, यू आर समवेयर एल्स। तुम भी तिवारी, और जिस दिन तुम मतलब मंतव्य बना के आते हो ना कि वहीं पे बैठना है, इसका मतलब ये कि पढ़ाई करने के इरादे से तुम आए नहीं हो, घर से निकले ही नहीं हो पढ़ाई करने के इरादे से। ये 1.5 घंटा बस काटना है इसको। Which of the following cannot be probability of an event? आपने देखा कि probability of event कहां से कहां तक हो सकती है? 0 से लेकर 1 तक, ठीक है? क्या ये 2/3 इसके बीच में आ रहा है? आ रहा है ना भाई साहब? 2/3 कितना होगा? 0.66। तो क्या वो 0 और 1 के बीच में आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा है? अरे भाई साहब 2/3 क्या हो जाएगा? 2/3 क्या? 2/3 इज लेसर देन 1 एंड इज ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव है तो 0 से ग्रेटर देन हुआ, और लेसर देन 1 है, क्योंकि 1 को अपन क्या लिख सकते हैं? 3/3 लिख सकते हैं। सो ऑब्वियसली 3/3 इज ग्रेटर देन 2/3। सो यस इट क्वालिफाइज। क्या ये क्वालिफाई होगा? क्यों? यहां तो लिखा है मैंने, सारे प्रोबेबिलिटीज 0 से 1 के बीच में हो गए, -1.5 0 से लेस है, तो दिस डजंट क्वालिफाई। 15%, क्या ये हो सकता है प्रोबेबिलिटी? चरायु 15%, क्या किसी इवेंट की पॉसिबिलिटी 15% हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि 15% मतलब क्या होता है? 15/100, 5 3s are 15, 5 20s are 100। क्या ये फ्रैक्शन लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 है? बिल्कुल है भाई साहब, ठीक है? कैसे हम बोल सकते हैं? क्योंकि 3/20 जो है वो लेस देन 1 होगा ही। 1 कितना होता है? 20/20 लिख सकते हैं, तो ऑब्वियसली 20/20 इज ग्रेटर देन 3/20। और क्या ये ग्रेटर देन 0 है? बिल्कुल है, क्योंकि पॉजिटिव है भाई साहब, ठीक है? तो दिस इज पॉसिबल। 0.7 0.7 सो 0.7 क्यों? 0 और 1 के बीच में है इसलिए, ओके। अगर आप 0.7 को लेंगे तो 7/10 होता है। अगेन फ्रैक्शन वाइज भी ये 0 और 1 के बीच में है, ठीक है? तो आपके कौन कौन से प्रोबेबिलिटी के लिए क्वालिफाई करते हैं? ऑल दीज 3 बट नॉट दिस वन बिकॉज इट इज नेगेटिव, ठीक है? If probability of an event is 0.05, what is the probability of not E? सेम नहीं होगा, गलत बोल रहा है। या ट्राई कीजिए। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, अगर मैं बोल रहा हूं ऐसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट हैपनिंग, जिसको अपन ई कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हैपनिंग एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट हैपनिंग, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 1, अपन ने अभी देखा, ठीक है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हैपनिंग कितना है? 0.05। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट हैपनिंग, लेट्स से अपन ने इसको ई कॉम्प्लीमेंट लिखा है, दिस इज 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट हैपनिंग इज इक्वल टू हाउ मच? 1 minus 0.05, that will be how much? 0.95, ठीक है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? So probability is 0.95, okay.
It is given in a group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. What is the probability that the 2 students have the same birthday? चलो भाई साहब करना है सवाल, ऐसे देख रहे मानो पिक्चर चल रही है. चलो हो गया, जल्दी जल्दी. It is given that in a group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday. तो let's say ये event है, तो हमने यहाँ पे भाई साहब let E be the event, let E be the event that 2 students do not have the same birthday. Let E be the event that 2 students do not have the same birthday. ठीक है, क्लियर है? Let E be the event that 2 students do not have the same birthday. ठीक है, ओके. Not having the same birthday, तो आपका probability of E कितना है भाई साहब? आपका 0.992. ये हो गया आपका probability of E. What is the probability that 2 students have the same birthday? हाफ कैसे होगा? देखो, probability of E, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट. ठीक है, ये क्या है आपका? प्रोबेबिलिटी है 2 स्टूडेंट्स हैविंग नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, नॉट हैविंग, लेट्स से इसको आपने कॉम्प्लीमेंट लिख दिया, हैविंग द सेम बर्थडे. और ये क्या है भाई साहब आपका? लेट्स से हैविंग द सेम बर्थडे. ये कितना होना चाहिए? 1. तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ये हो गया 1 माइनस 0.992. ठीक है, ये कितना आ जाएगा भाई साहब? 0.2 प्लस 8 10 0.008. ठीक है, क्लियर है? ओके. प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.008. क्लियर है भाई साहब? ये प्रोबेबिलिटी ई, लेट्स से, इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे. तो ये आपका कितना दिया हुआ है? 0.992. प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स हैविंग द सेम बर्थडे प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1. क्योंकि ये दोनों किस तरीके के इवेंट्स हैं? ये दोनों किस तरीके के इवेंट्स हैं? What type of events are these? The probability of an event happening plus the probability of an event not happening. ये दोनों भाई साहब आपके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होंगे, और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का हमेशा सम जो है तो 1 आएगा. ठीक है, तो probability of an event happening and probability of an event not happening, that will always be equal to 1. So probability of E will be 1 minus P of E, that is 1 minus 0.992, that is 0.008. Probability of 2 students having the same birthday is 0.008. Are we clear? Clear on this one? Okay, okay, okay. चलिए भाई साहब इसको करना है फटाक से, क्विक क्विक एवरीवन.
अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, तो इसमें भाई साहब 5 आपके रेड मार्बल्स हो गए, 8 व्हाइट मार्बल्स, 8 व्हाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। यहाँ पे 4 ग्रीन मार्बल्स है। 1 मार्बल इज टेकन, तो टोटल मार्बल्स कितने हो गए? 5 + 8 + 13 + 4 17। तो सैंपल स्पेस आपका कितने का हो गया भाई साहब? 17। कार्डिनल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस अपन बोल सकते हैं कितना है? 17। ठीक है, ओके। या टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल आउटकम्स, या कार्डिनल नंबर ऑफ एस दैट इज सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 17 बोल लो, या टोटल आउटकम्स आपका कितना है? टोटल आउटकम्स आपका कितना हो गया? 17। ठीक है। One marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be red? तो रेड की पॉसिबिलिटी कितनी होगी? तो अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे भाई साहब? पहली तो आपकी प्रोबेबिलिटी मतलब आपका रेड आने का, ठीक है, कितने हैं टोटल? कार्डिनल नंबर ऑफ रेड कितने हैं? 4। ठीक है, या अपन बोल सकते हैं फेवरेबल, सॉरी 5। ठीक है, रेड फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं आपके? फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कमिंग आउट विल बी इक्वल टू 5/17। ये हो जाएगा भाई साहब आपका 5/17। सिमिलरली ये कितना हो जाएगा बोलो? 8/17। एंड नॉट ग्रीन, नॉट ग्रीन मतलब ग्रीन नहीं होना, मतलब 5 और 8 13/17। ये हो जाएगा। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके। तो एज द बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स हो गए आपके 17। लेट ए बी द इवेंट दैट अ रेड मार्बल इज ड्रॉन। ठीक है, तो आपका ए का भाई साहब वैल्यू कितना हो जाएगा? 5/17। व्हाइट, सो दिस विल बी 8/17। लेट्स सी, तो ये हो गया आपका 13/17। ठीक है। अ पिगी बैंक कंटेन्स, पिगी बैंक मतलब जिसमें आप गुल्लक डालते हैं भाई साहब, ठीक है, कॉइन्स, 50 पैसा कॉइन्स, 50 रुपीज 1 कॉइन्स। ठीक है, तो इसमें कितने हैं भाई साहब? 100 आपके क्या हैं? 50 पैसा कॉइन्स हैं, 50 आपके क्या हैं? रुपीज 1 कॉइन्स हैं, एंड 20 रुपीज 2 कॉइन्स हैं, एंड 10 रुपीज 5 कॉइन्स हैं। इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट one of the coins will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin will be? तो जब आप कभी-कभी आप गुल्लक को जब ऐसे करते हो तो उसके जहां से आप कॉइन डालते हो उधर से कभी-कभी एक कॉइन गिर जाता है। तो समझ लीजिए एक ऐसा इवेंट है जहां पे उससे एक कॉइन गिर रहा है, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि ये जो कॉइन गिर रहा है वो 50 पैसा वाला कॉइन होगा, या क्या पॉसिबिलिटी है कि जो कॉइन गिर रहा है वो 5 पैसा वाला रुपीज 5 वाला कॉइन होगा? ठीक है, कीजिए भाई साहब। कितने हैं देखो, आपके टोटल कॉइन्स कितने हैं? टोटल कॉइन्स आपके कितने हैं? 150 पैसा कॉइन्स, तो ये हो गया आपके 100। ठीक है, और 50 रुपीज 1 कॉइन्स, तो ये हो गया आपके 50, और 20 रुपीज 2 कॉइन्स, तो ये हो गया 20, तो ये हो गया आपका 170। ठीक है, ये हो गया आपके टोटल कॉइन्स। ओके, अरे 10 ये भी है ना भाई साहब, 10 ये भी है भाई साहब, सॉरी, तो ये हो गया आपका 180। 10 ये भी है, 5 रुपीज कॉइन। ओके, 50 पैसा कॉइन कितने हैं? 50 पैसा कॉइन भाई साहब कितने हैं आपके? 100 है ना। तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ अ 50 पैसा कॉइन फॉलिंग कितना हो जाएगा? लेट ई बी द इवेंट वेरिन अ 50 पैसा कॉइन फॉल्स व्हेन इट इज ओवरटर्न। तो आपका कितना हो जाएगा? ई विल बी इक्वल टू 100/180। सिंपल। ठीक है, तो ये हो गया 2 5 10, 2 9 18, ये हो गया आपका 5/9। विल नॉट बी अ ₹5 कॉइन। ठीक है, तो ₹5 कॉइन कितने हैं भाई साहब? आपके 10 है ना। ₹5 कॉइन कितने? 10। बाकी सब तो आपके ₹5 कॉइन नहीं है, तो 100, तो या तो 180 से मतलब 10 माइनस कर दो, तो कितना हो गया? 170/180। तो ये आपका इसका पॉसिबिलिटी हो गया, तो ये हो जाएगा कितना आपका? देखो 17/18। आर वी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है, तो आपका 50 पैसा कॉइन, सो दिस इज बेसिकली अ पिगी बैंक। अगर आपने इसको उलट दिया तो इसमें से, ठीक है, 50 पैसा कॉइन, तो 50 रुपीज 1 कॉइन्स, 20 रुपीज 2 कॉइन्स। आपने इसको उल्टा तो उसमें से एक कॉइन बाहर आएगा, विच कॉइन विल फॉल आउट। ठीक है, ओके, और यहाँ पे हो गया भाई साहब टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो गए? सो दिस विल बी 180 कॉइन्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ओके, let A be the event, the coin will be a 50 पैसा coin, number of outcomes favorable to A। ठीक है, 100 upon भाई साहब कितना हो जाएगा? 180, so that will be 5/9। ठीक है, not a 5 रुपीज coin, 170/180, तो ये हो गया आपका 17/18। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट।
डन डन डन। A box contain 90 discs which are numbered from 1 to 90। तो आपके 90 discs हैं और इनके नंबर्स कहां से कहां तक है भाई साहब? 1 to 90। If one disc is drawn at random from the box, एक डिस्क को निकाला जा रहा है, find the probability that it bears a 2-digit number, a perfect square number, a number divisible by 5। ठीक है, 1 to 90 है तो आपका सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? देखो 1 2 3 4 ऐसा करते करते कहां तक है भाई साहब? 90 तक है। ठीक है, ओके। 2 डिजिट नंबर का सेट कितना हो जाएगा? तो ये हो गया आपका सैंपल स्पेस टोटल। ठीक है, 2 डिजिट नंबर क्या क्या हो जाएंगे? 2 डिजिट नंबर का अगर मैं सेट बना रहा हूं तो ये क्या क्या होगा? कहां से स्टार्ट होगा? 20 से लेकर कहां तक? 90 तक, है कि नहीं? ठीक है, तो कार्डिनल नंबर ऑफ टी कितना हो जाएगा? बोलो, व्हाट विल बी द कार्डिनल नंबर ऑफ टी? ये तो कार्डिनल नंबर ऑफ एस कितना हो गया? कार्डिनल नंबर ऑफ एस इज ऑब्वियसली 90। कार्डिनल नंबर ऑफ टी कितना हो जाएगा? बोलो 81। 81 90 माइनस 20 कितना होता है? 70। 71 होगा ना? हाँ, 2 डिजिट नंबर, हमने 10 नहीं पकड़ा ना। ठीक है, ये 10 से 90 तक, तो दिस विल बी बेसिकली 81। 81 समझ में आ रहा है कैसे होगा? 90 माइनस 10 होता है भाई साहब आपका 80, लेकिन आप 10 को भी गिनेंगे। ठीक है, तो आपका 81 हो गया। ओके, अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या क्या हो जाएगा? बोलो, इसको तो आप लिख सकते हो। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 81, बस, और इससे ज्यादा नहीं जा सकते क्योंकि 90 क्रॉस हो जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 परफेक्ट स्क्वायर। लेट्स से हमने पी लिख दिया इसको। ठीक है, सो यहाँ पे कार्डिनल नंबर ऑफ पी यहाँ पे कितना हो जाएगा? बोलो 9, है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे कार्डिनल नंबर ऑफ टी हो गया भाई साहब 81। ठीक है, अ नंबर डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो डिविजिबल बाय 5, लेट्स से डी लिख रहे हैं अपन। ठीक है, ये क्या क्या हो जाएगा? बोलो 5 10 15, ऐसा करते करते कहां तक जाएंगे भाई साहब? 90 तक जाएंगे। कितना हो जाएगा? बोलो, इसका बता सकते हैं कितना होगा? 18 5 से 90 होता है, तो आपका कार्डिनल नंबर ऑफ डी कितना हो जाएगा? कार्डिनल नंबर ऑफ डी हो गया आपका 18। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। तो अभी आपको फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बेयर्स अ 2 डिजिट नंबर। एक 2 डिजिट नंबर ये बेयर कर रहा है, तो आपका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? 2 डिजिट नंबर आपका भाई साहब यहाँ पे कितना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ टी, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी विल बी इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ टी अपॉन कार्डिनल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो कार्डिनल नंबर ऑफ टी कितना हो गया? 81। 81 बाई 90, 9 9 जा 81, 9 10 जा 90, तो ये हो गया आपका 9/10। ठीक है, अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बोलो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का प्रोबेबिलिटी ऑफ पी दैट विल बी इक्वल टू 9/90, दैट इज 1/10। ठीक है, a number divisible by 5, तो number divisible by 5 that will be equal to 18/90, that is equal to 1/5। ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो ये हो गया आपके भाई साहब 1 2 3 4 आउटकम्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स भाई साहब कितने हो गए? देखो 81। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो 10 से लेकर 90 तक कितने नंबर्स हुए? 81 नंबर्स हुए, इंक्लूडिंग 10। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ए अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए भाई साहब? 81 अपॉन 90, दैट इज 9/10। ओके, अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये क्या क्या हो जाएगा भाई साहब? लेट बी बी द इवेंट। ठीक है, तो बी का वैल्यू देखो यहाँ पे, आप इन सब नंबर्स को, ये सब लिखना नहीं है, सिर्फ 1 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर करो और देखो कब तक 90 तक नहीं क्रॉस कर रहे हो। तो 81 आ गया आपका। ठीक है, सो दैट विल बी आपके कितने नंबर्स हो गए? 9। ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 90, तो 9/90, दैट इज 1/10। ठीक है, ओके। अ नंबर डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका 18/90, दैट इज 1/5। ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके, चलिए इसको करना है भाई साहब फटाफट, क्विक क्विक क्विक। मैंने ग्रुप में डाल दिया है, आपके पेरेंट्स से मुझे मिलना है, तो प्लीज कल लेकर आइएगा। ठीक है,
A bag contains lemon flavored candies only. Malini takes out candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out an orange flavored candy? भाई अगर सारे आपके लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं तो क्या उसमें से ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी निकलेगा? नहीं. तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी भाई साहब? 0. अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ये आपका श्योर इवेंट हो गया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1. ठीक है, क्लियर? विदाउट एनी कैलकुलेशन वी कैन से दिस. ओके, सो अगर आपके भाई साहब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स x, ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा 0. कैंडी इज टेकन इज लेमन फ्लेवर, तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब? x by x, दैट इज 1. ठीक है, श्योर इवेंट है. A bag contains 3 red balls, 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is red and not red? चलिए फटाफट, quick. 3 red balls है, ठीक है, एक बैग में भाई साहब आपके 3 red balls है and 5 black balls हैं. 3 red balls and 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. एक randomly हम बॉल को ड्रॉ कर रहे हैं. What is the probability that the ball drawn is red? तो red की probability क्या हो जाएगी भाई साहब? Probability that the ball drawn is red is equal to 3/8. ठीक है, what is the probability that the ball drawn is not red? तो probability R complement ये कितना हो जाएगा बोलो? 5/8. That is not red is 5/8. ठीक है, क्लियर है? ओके. चलिए भाई साहब इसको करना फटाक से, क्विक, जल्दी. A game of chance consists of spinning an arrow. भाई साहब यहाँ पे देखो एक ये आपका भाई साहब एक सर्कल रहेगा और इसमें 8 नंबर्स हैं. तो ये जो एरो है किन्हीं नंबर में से एक में आ सकता है, तो आप जीतेंगे. ठीक है, दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8? ये कितना हो जाएगा? 1/8. एंड ऑड नंबर, तो भाई साहब ऑड नंबर्स क्या क्या हो गया? 1, 3, 5, 7. तो ये कितना हो जाएगा? 4/8, दैट इज 1/2. और नंबर ग्रेटर देन 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो ये हो गया आपका 6/8. 2 3s are 6, 2 4s are 8. और नंबर लेस देन 9, 1. प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी ना भाई साहब? सारे नंबर्स हैं तो श्योर इवेंट हो गया ये आपका. तो ये हो जाएगा 8/8, दैट इज 1. ठीक है, क्लियर है? ओके, सो आपका ये स्पिनिंग व्हील है. ऑन विच एवर नंबर द एरो पॉइंट्स दैट नंबर इज टेकन एज एन आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट. ठीक है, तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स आपके 8 हो गए. ठीक है, 1/8, ये हो गया आपका 4/8. देन वी हैव 6/8, 3/4, ये हो गया 8/8, दैट इज 1. ओके, a die is thrown once. Find the probability of getting a prime number, a number lying between 2 and 6 and an odd number. एक ही बार एक डाई को फेंका गया है तो उसका सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा? 6. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए? 6. प्राइम नंबर्स इसमें क्या क्या हैं? 2, 3 एंड 5. 3 प्राइम नंबर्स हैं, तो 3/6 हो गया पहला वाला, दैट इज 1/2. ये हो गया आपका 1/2. अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, तो क्या नंबर है भाई साहब? 3, 4 एंड 5. ये आपके नंबर्स हो गए. तो इसका पॉसिबिलिटी कितना हो जाएगा? अगेन 3/6, दैट इज 1/2. एंड एन ऑड नंबर का पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा? 1, 3, 5. तो ये अगेन 3/6, दैट इज 1/2. तीनों के आंसर्स 1/2 आएंगे. ठीक है, तीनों के भी आंसर्स आपके 1/2 आ जाएंगे. देखो 3/6, दैट इज 1/2. ठीक है, हाँ जा उसके साथ एक राइट देकर रहा भाई साहब. ये हो गया आपका भाई साहब 3/6, दैट इज 1/2. ठीक है, क्लियर है? A child has a die whose 6 faces show the letters as given below. ठीक है, A B C D E A है. ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2 A है. ठीक है, और बाकी सब B C D E है. ठीक है, ओके, सो दिस इज बेसिकली अ डाइस. ठीक है, ओके, ये 6 फेसेस हो गए. अ डाइस इज थ्रोन वंस. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A एंड D? तो भाई साहब A का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? 2/6, क्योंकि 2 A's हैं
तो ये हो जाएगा 2/6 और डी की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/6 डी की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी ठीक है आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम ठीक है तो आपका भाई साहब हो जाएगा 2/6 डी की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6 ओके Two dices, one blue and one gray, are thrown at the same time. Complete the following. ठीक है? Event that sum of two on dice. Probability कितनी कितनी हो जाएगी भाई साहब? देखो two dices, one blue and one gray. ठीक है? यहाँ पे दो dices हैं. ठीक है? One blue and one gray are thrown at the same time. Complete the following. Event sum on the two dices. जो दो dices हैं उनका sum भाई साहब आए 2 3 4 5 ऐसा ये कभी होगा 2 आएगा कब जब पहले वाले डाइस में आया हो 1 और दूसरे वाले में आया हो 1 तो ये एक ही में हो सकता है भाई साहब तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो दिस इज ओनली वन इवेंट तो आपके टोटल इवेंट्स कितने हो जाएंगे 36 हो जाएंगे ठीक है तो ये एक इवेंट हुआ 1 1 तो ये हो जाएगा आपका 1/36 ये प्रोबेबिलिटी हो गई भाई साहब इवेंट की 3 आप पे किस में आ सकता है 1 2 और भाई साहब और बोलो 2 और 1 ठीक है पहले वाले में 1 आया और दूसरे वाले में 2 पहले वाले में 2 आया और दूसरे वाले में 1 ठीक है तो ये आपके दो इवेंट्स हो गए तो ये कितना हो जाएगा बोलो 2/36 दैट इज 1/18 ठीक है 4 आया हो 4 आने की पॉसिबिलिटीज क्या क्या है बोलो 1 3 3 1 2 2 ठीक है ये आपके भाई साहब पॉसिबिलिटीज हो गए तो कितने पॉसिबिलिटीज हो गए 3/36 3/36 दैट इज 1/12 ठीक है 5 के पॉसिबिलिटीज क्या क्या होंगे बोलो 1 1 4 चलिए 4 1 ठीक है फिर 2 3 3 2 और कुछ पॉसिबिलिटीज है नो ठीक है तो आपके 4 4/36 दैट इज 1/9 ठीक है 6 के पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो जाएंगे 1 5 5 1 ठीक है फिर 2 4 4 2 और फिर 3 3 तो 5/36 5 पॉसिबिलिटीज हो गई ठीक है 7 के पॉसिबिलिटीज क्या क्या है बोलो 1 6 6 1 और बोलो 3 4 4 3 हाँ 2 5 5 2 चलिए भाई साहब 2 5 5 2 और एनीथिंग एल्स ठीक है तो 6/36 दैट इज 1/6 8 की पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो जाएंगी 2 6 6 2 और बोलो 4 4 और 1 7 7 1 3 5 5 8 सॉरी 3 5 5 एंड 3 ठीक है सेम टाइम है ओके यहाँ पे 5/36 कैसे आ जाएगा इसका तो समझ में आ रहा है एक ही इवेंट होगा 6 और 6 तो जिसमें आ जाता है आपका 1/36 5/36 कैसे हो गया यार 8 8 8 इतने सारे इवेंट्स हो रहे 1 2 3 4 देखना पड़ेगा भाई साहब ये आपके इवेंट्स हो गए ठीक है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो गए आपके 6 व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सम ऑफ द स्कोर्स दैट इज 1 + 1 दैट इज 2 ठीक है तो 2 का भाई साहब क्या पॉसिबिलिटी हो जाएगा जब 1 1 आए ठीक है सो ये हो गया भाई साहब आपका तो 3 का भाई साहब कब होगा 1 2 और 2 1 तो ये हो जाएगा आपका 2/36 4 का भाई साहब क्या हो जाएगा 1 3 2 2 और 3 1 है ना तो ये हो गया आपका 3/36 ओके चलिए भाई साहब 3/36
5 5 कब कब होगा देखो 1 4 2 3 3 2 और 4 1, ठीक है। सो आपका हो गया ये 4/36। ओके 6 6 का भाई साहब 1/5 1 5 आए 2 4 आए 3 3 आए 4 2 आए और 5 1 आए, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच 5/36। 7 का भाई साहब 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1, तो आपके हो गए भाई साहब पॉसिबिलिटीज यहाँ पे कितने 6/36। 8 का क्यों ऐसा हो गया भाई साहब, 8 का कैसे, ये तो दिया ही नहीं भाई साहब। 8 के क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो जाएंगे, 8 के पॉसिबिलिटीज हो गया 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2, ये सारे आपके 8 के पॉसिबिलिटीज हो गए। हाँ ठीक है भाई साहब 1 2 3 4 5, ठीक है 5/36 ही आएगा। और कोई आ रहा है, नहीं ना भाई साहब, ठीक है। इस तरह से जाएंगे तो यस द आंसर इज करेक्ट, आपका देखो 5/36 ही आ रहा है, ठीक है। 9 की पॉसिबिलिटीज भाई साहब क्या क्या हो जाएंगी, 9 की पॉसिबिलिटीज तो आपका देखो 3 6 4 5 5 4 और 6 3, ठीक है। सो आपके 4/36, ठीक है। तो 10 की पॉसिबिलिटीज भाई साहब क्या क्या हो जाएंगी 3/36, तो आपका लास्ट आ गया। तो अगर आप देखोगे ये पूरा सीरीज जो है 1/36 से 1/36 है, 2 3 4 5 बढ़ा, फिर आपका 6 तक गया, फिर 5 4 3 2 1, दैट्स हाउ इट इज, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम? ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम टुडे।